کپڑے واپس کر دیے انہوں نے, سلائی کا معاوضہ بھی نہیں دیا. کہہ رہی ہیں کہ بالکل ان کے مطابق نہیں تھا تو اب تو میں انہیں سوٹ دلوا کے دوں یا تو پھر میں کپڑا خریدوں اور ان کے مطابق سلائی کر کے دوں. تو ٹھیک ہے, اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات؟ ہم انہیں ان کپڑوں کے پیسے دے دیں گے اور تم یہ کپڑے خود رکھو اپنے لیے. ایان پورے 15,000 کے سوٹ ہیں اور پھر اوپر سے میرے 5,000 کا خرچہ بھی تو ہوا ہے نا, لیسز, بٹنز اور وہ دھاگے بھی منگوائے میں نے. پھر اوپر سے میری اتنی راتوں کی محنت, اتنا نقصان. پچھلی دفعہ تو انہیں میرے سارے سوٹ پسند آئے تھے, خوش ہو کے 1,000 روپے ایکسٹرا بھی دیے انہوں نے. سوکھ ہے میری جان, ہر بزنس میں نفع نقصان ساتھ ساتھ چلتا ہے. بس اب میں یہ کام نہیں کروں. ہم انہیں ان کپڑوں کے پیسے واپس دیں گے اور تم اپنا کام بالکل نہیں چھوڑو گی, ایسے ہی کرتی رہو. اور ایک کام کر, یہ کپڑے مجھے دے, کل میں اپنے دوست کی شاپ پر لے جاؤں گا, اس کا بھی بوتیک کا کام, وہاں بک جائیں. ایسی باتیں نہیں کرتے. تم ہی تو کہتی تھی نا, آپ اللہ سے جیسی امید کرتے ہیں ویسا ہی نتیجہ نکلتا ہے. تو بی پازیٹیو, اچھا سوچو. موہنی is expecting. پراسرار دریا. ایک گاؤں کے قریب ایک ایسا دریا تھا جس کا پانی ہر رات چاندنی میں سنہری ہو جاتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ اس دریا کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہے جو صرف نیک دل انسان کو دکھائی دیتا ہے. 17 سالہ ارحم نے ایک رات دریا کے کنارے جانے کا فیصلہ کیا. وہاں پہنچ کر اسے پانی میں ایک چھوٹی سی کشتی نظر آئی. کشتی میں ایک پرانا چراغ رکھا تھا. جیسے ہی ارحم نے چراغ اٹھایا, پانی میں ایک راستہ روشن ہو گیا. وہ کشتی میں بیٹھ کر اس راستے پر چل پڑا. کچھ دور جا کر اسے ایک چھوٹا جزیرہ نظر آیا. جزیرے کے بیچ ایک قدیم درخت تھا جس کی شاخوں پر ہزاروں روشن پتیاں لٹک رہی تھیں. درخت سے ایک آواز آئی, تم یہاں کیا ڈھونڈنے آئے ہو؟ ارحم نے جواب دیا, ایسا علم جو میرے گاؤں کے لوگوں کے کام آ سکے. درخت کی ایک شاخ سے ایک سنہری پتا نیچے گرا. اس پر لکھا تھا, جو علم صرف اپنے لیے رکھا جائے وہ بوجھ ہے, جو دوسروں میں بانٹا جائے وہ روشنی ہے. اچانک درخت کی تمام روشن پتیاں کتابوں میں تبدیل ہو گئیں. ارحم وہ کتابیں گاؤں لے آیا. اس نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا, کسانوں کو بہتر طریقے سکھائے اور نوجوانوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی. چند برسوں میں گاؤں بدل گیا. جب ایک بچے نے پوچھا, کیا سنہری دریا اب بھی موجود ہے؟ ارحم مسکرا کر بولا, دریا تو اب بھی ہے, مگر اس کا اصل خزانہ اس کے پانی میں نہیں, اس علم میں تھا جو ہمیں دوسروں تک پہنچانا تھا. سبق, علم کی اصل قدر اسے جمع کرنے میں نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے بانٹنے میں ہے. پراسرار دریا. ایک گاؤں کے قریب ایک ایسا دریا تھا جس کا پانی ہر رات چاندنی میں سنہری ہو جاتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ اس دریا کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہے جو صرف نیک دل انسان کو دکھائی دیتا ہے. 17 سالہ ارحم نے ایک رات دریا کے کنارے جانے کا فیصلہ کیا. وہاں پہنچ کر اسے پانی میں ایک چھوٹی سی کشتی نظر آئی. کشتی میں ایک پرانا چراغ رکھا تھا. جیسے ہی ارحم نے چراغ اٹھایا, پانی میں ایک راستہ روشن ہو گیا. وہ کشتی میں بیٹھ کر اس راستے پر چل پڑا. کچھ دور جا کر اسے ایک چھوٹا جزیرہ نظر آیا. جزیرے کے بیچ ایک قدیم درخت تھا جس کی شاخوں پر ہزاروں روشن پتیاں لٹک رہی تھیں. درخت سے ایک آواز آئی, تم یہاں کیا ڈھونڈنے آئے ہو؟ ارحم نے جواب دیا, ایسا علم جو میرے گاؤں کے لوگوں کے کام آ سکے. درخت کی ایک شاخ سے ایک سنہری پتا نیچے گرا. اس پر لکھا تھا, جو علم صرف اپنے لیے رکھا جائے وہ بوجھ ہے, جو دوسروں میں بانٹا جائے وہ روشنی ہے. اچانک درخت کی تمام روشن پتیاں کتابوں میں تبدیل ہو گئیں. ارحم وہ کتابیں گاؤں لے آیا. اس نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا, کسانوں کو بہتر طریقے سکھائے اور نوجوانوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی. چند برسوں میں گاؤں بدل گیا. جب ایک بچے نے پوچھا, کیا سنہری دریا اب بھی موجود ہے؟ ارحم مسکرا کر بولا, دریا تو اب بھی ہے, مگر اس کا اصل خزانہ اس کے پانی میں نہیں, اس علم میں تھا جو ہمیں دوسروں تک پہنچانا تھا. سبق, علم کی اصل قدر اسے جمع کرنے میں نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے بانٹنے میں ہے. پراسرار دریا. ایک گاؤں کے قریب ایک ایسا دریا تھا جس کا پانی ہر رات چاندنی میں سنہری ہو جاتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ اس دریا کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہے جو صرف نیک دل انسان کو دکھائی دیتا ہے. 17 سالہ ارحم نے ایک رات دریا کے کنارے جانے کا فیصلہ کیا. وہاں پہنچ کر اسے پانی میں ایک چھوٹی سی کشتی نظر آئی. کشتی میں ایک پرانا چراغ رکھا تھا. جیسے ہی ارحم نے چراغ اٹھایا, پانی میں ایک راستہ روشن ہو گیا.
वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीक़े सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्रार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीक़े सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्रार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीक़े सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्रार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके।
दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गाँव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गाँव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्कार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गाँव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गाँव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्कार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गाँव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गाँव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्कार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गाँव ले आया।
इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्रार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्रार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्रार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है?
अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जुमा करने में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्कार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जुमा करने में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्कार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जुमा करने में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्कार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जुमा करने में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है।
पुरस्रार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्रार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्रार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्रार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया।
वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्कार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्कार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीके सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्कार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया।
जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम रोशन पत्तियां किताबों में तब्दील हो गईं। अरहम वो किताबें गांव ले आया। इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों को बेहतर तरीक़े सिखाए और नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। चंद बरसों में गांव बदल गया। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या सुनहरी दरिया अब भी मौजूद है? अरहम मुस्कुरा कर बोला, दरिया तो अब भी है, मगर उसका असल खजाना उसके पानी में नहीं, इस इल्म में था जो हमें दूसरों तक पहुंचाना था। सबक, इल्म की असल कद्र उसे जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बांटने में है। पुरस्रार दरिया। एक गांव के करीब एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हर रात चांदनी में सुनहरी हो जाता था। लोग कहते थे कि इस दरिया के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को दिखाई देता है। 17 साला अरहम ने एक रात दरिया के किनारे जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पानी में एक छोटी सी किश्ती नजर आई। किश्ती में एक पुराना चिराग रखा था। जैसे ही अरहम ने चिराग उठाया, पानी में एक रास्ता रोशन हो गया। वो किश्ती में बैठकर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा जजीरा नजर आया। जजीरे के बीच एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखों पर हजारों रोशन पत्तियां लटक रही थीं। दरख्त से एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? अरहम ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे गांव के लोगों के काम आ सके। दरख्त की एक शाख से एक सुनहरी पत्ता नीचे गिरा। इस पर लिखा था, जो इल्म सिर्फ अपने लिए रखा जाए वो बूझ है, जो दूसरों में बांटा जाए वो रोशनी है। अचानक दरख्त की तमाम